प्रार्थना करेंगे परमेश्वर धन्यवाद इस शाम के लिए परमेश्वर आपने हम सबको यहाँ पर इकट्ठा किया पिता। हम धन्यवाद करते परमेश्वर इस नए दिन के लिए पिता। आपकी स्तुति आराधना करते हैं कि आप ही सच्चे हमारे पिता हो, आप ही एक जीवित परमेश्वर है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते इस सभा में आपकी महिमा पिता, स्तुति आराधना और जो भी संदेश होगा पिता वो आपकी महिमा और आपके नाम को ऊंचा होता है। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना प्रवेश के नाम से करते हैं, आमीन।
your counsel of old, a faithfulness and hope. For you have been a strength to poor, a strength to the needy in his distress, a refuge from the storm, a shade from the heat, and from the blast of the terrible winds is as a storm against the world. सारी सृष्टि के मालिक तुम्ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम्ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम्ही हो, सारी सृष्टि की रक्षक तुम्ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। Yes, God, you are the creator, you are the maker, you are the ruler of our country, you are the ruler of this land, God. And this evening, Lord, as we lift up our hands in worship, Lord, Lord, we look to heaven, Lord, we ask, Lord, for so many eyes that are blinded, God. We pray, Lord God, in this season, Lord God, that you will open many eyes, Lord, many blind eyes, Lord, that are blinded by religion, that are blinded by superstition, Lord. We ask, Lord, because you are creator, you are ruler, Lord, this land belongs to you, God. We ask, Lord God, for an awakening in this land, God. Nothing is so difficult for you, Lord.
प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान, प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान, how great thou art, how great thou art. Yes, Lord, you are awesome. You are great, God. And even though you are so great, Lord, you humbled yourself. You took the cross for my sin. Thank you, Lord, for that love. Thank you so much for that love that you showed us on the cross, God. We ask, Lord, once again, we ask, Lord, in this season, Lord, that you will open the eyes of many in this region. Many, Lord, in the regions of the north, God. We pray, Lord, for eyes to be open, God. That your great love, Lord, would be revealed, Lord God. That strongholds would come down, Lord. The strongholds that bind people, Lord. That your great love would bring those strongholds down. And that your gospel would have free course, God, without any hindrance, God. You are great, God, and nothing can stop the Lord Almighty. That is who we serve, God. We thank you. We thank you that you are a personal God and that you speak to us. Speak to our hearts, Lord, this evening. In Jesus' name we pray. Amen. About this. In the Garden of Eden, God's goal was a couple would be naked and not ashamed. They could share anything they needed. The deepest needs and not be ashamed. Now there are different levels of communication that take place in a marriage. I'm going to read out something for you that I thought was interesting. There is the first thing in communication is we share facts in marriage. Then we go to a deeper level where we share opinions and convictions and feelings. And number three, we'll share our deepest needs. And in great marriages, the couple is able to share their deepest needs. Now, please understand, facts have a place in marriage. Let's say your husband and wife is communicating and the husband says, or the wife says to the husband, you know, the son doesn't have school today. It's just a fact. It doesn't require an emotional response. There's no emotions involved, it's just a fact. Or we have a meeting today, it's at 10 o'clock. Or the wife says to the husband, I think our home needs some painting. Just a fact. And husbands and wives, we communicate all the time like that, right? Just giving facts. Facts help us to understand what to do in life, how to care for the home, how to take care of the kids. Just facts going back and forth. But a good marriage goes beyond the facts. In marriage, because we're so close to each other, we go into something which is very important. What do you think about who you should get for the painting? What do you think about how much school the kid should go to? Now you come to two people making a decision, sometimes coming from different, and we agree on many points together, but because we're two different people, a husband and wife, we might see issues a little differently. But when you express an opinion, you have to remember
that my husband and wife have a very valid opinion. And if I respect what they're trying to communicate from their point of view, it's a great thing. Now, most conflicts happen, I want to read this to you. It is the level of expressing opinions and convictions and feelings that most conflicts arise. When married couples begin to share opinions and convictions and the feelings, disagreements can develop, which can escalate sometimes into arguments. Yet this is not necessarily bad or unhealthy thing, as long as both sides respect one another and remain willing to work out their disagreements in love. We'll spend a whole bunch of time discussing conflict. Then there's a third level, and listen to this level. It's the level where a couple can communicate their deepest needs. But only when a couple has invested in each other. When a couple has really given each other time, when they've laid down their lives for each other, when they have spent quality time, when they've played the role of the servant lover and the romantic lover, and they've given each other deposits of time, a couple now knows they can trust each other completely. And in this amazing, wonderful level of commitment, a husband and wife can communicate their deepest needs to one another. Sometimes those deepest needs are just understood. The need for a quiet time, the need for space, the need for affection, the need for encouragement. I come back sometimes from a long day at work and my wife wants to talk about something, and I will just say to her, "Hon, I just need a little time. I need a little space." Or I'm getting ready for something really important, and I say to her, "I need quiet right now. I just need quiet. I just need to focus." And she understands right away, because what we're doing is significant for each other and the roles we play. My wife will sometimes say to me, "Can you come and sit and talk with me?" And sometimes she's got this joke with me. When I'm busy, I'm studying. She will say to me, I'll say, "I'm busy right now getting a message." She says, "Well, if you talk to me for 5 minutes, I'm going to tell you God's going to anoint your message better." But sometimes we do. She just needs to meet somebody to talk with. She wants me to talk with her. There are days when we need affection. There are days when we just need quiet time. There are certain needs that are very deep in our hearts. When you've built that relationship and invested that relationship with your spouse, you can communicate something that's very deep down, that's meaningful to you. You can say, "Honey, I have this need right now." She will understand. Somebody was going through our marriage series and said, "Pastor, I understand what you're saying, but I don't have that relationship with my spouse, and sometimes what you're saying makes me feel very sad because I don't have it." But don't give up. Because many times the things that we are working through take months and years of investment of love and deposits of love that we're putting into each other. So at the deepest level, we want to communicate at the deepest level, where we can bear our souls to each other. And we absolutely, absolutely know that we have unconditional acceptance in that relationship. Okay? Praise the Lord. सभी लोग हैं? ओके. ग्रेडियस कलीसिया में आप सभी का स्वागत है. आप अपने लिए जोरदार तालियों से स्वागत करिए अपना. क्यों? क्योंकि बारिश बहुत है ना? आप मुझे देख सकते हो, मैं पूरा वाइट पहन के आया था. जब मैं बाहर आया तो ऐसे लग रहा है कि डिजाइन मैंने लिया था प्लेन, ये डिजाइनर हो गया. ओके, आप अपनी विश्वास योग्यता के लिए कि धन्यवाद कि बारिश है, बहुत सारे लोग नहीं आए, मेरी पत्नी भी नहीं आई, मेरे बच्चे भी नहीं आए, मेरी फैमिली नहीं आई, पर आप लोग विश्वास योग्य हैं और आप लोग कलीसिया में बने हैं, है ना? बहुत बहुत धन्यवाद. पास्टर मेलविन का हम लोग जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे. हमने पास्टर का हमने संदेश सुना ना, जो भी हमने क्लिप सुना,
मैं जब मैं सुन रहा था तो मैं एक जस्ट एक थॉट शेयर करना चाहता हूँ कि पौलुस बोलता है तुम मेरी सी चाल चलो, क्यों? क्योंकि मैं मसीह की चाल चलता हूँ, है ना। हमने पौलुस को नहीं देखा, है ना। पौलुस ने यीशु मसीह को देखा था। हमने पौलुस को नहीं देखा, पर हमने किसको देखा? पैस्टर कार्ल को देखा, है ना। तो जब वो किसी भी संदर्भ में या किसी भी किसी भी संदेश, तो कोई भी संदेश जो वो देते हैं, तो इस तरीके से लगता है कि स्वयं यीशु मसीह हमसे बात कर रहे हैं, है ना। पौलुस जिस तरीके से बोलता है वो मैरिज के बारे में सिखा रहे हैं। तो जब हम उनको देखते थे, उनका लाइफ को हम लोग देखते थे, तो हम लोग सिर्फ ये नहीं देखते कि जो उन्होंने प्रचार किया, उन्होंने उस तरीके का लाइफ जिया, है ना। अगर वो मैरिज के बारे में सिखा रहे हैं या वो कोई भी टॉपिक के बारे में जब सिखा रहे होते हैं, तो ऐसा लगता था कि हाँ ये करना है अरविंद, ये तुम्हारे लिए बोला जा रहा है। हम यहाँ पर बैठे हुए, हम हर एक किसी से ये टच होता था कि जब हम सुनते थे उनको, वो इतना कॉन्फिडेंस से हो कि वो अगर वो मैरिज के बारे में सिखा रहे, तो उन्होंने उस तरीके से अपने उस लाइफ को जिया। उनका संबंध उनकी पत्नी के साथ में, उनके बच्चों के साथ में, इवन परमेश्वर के साथ में था, जिस लिए वो बोलते हैं ना, अधिकार के तौर पे उन्होंने वो मैसेज प्रचार किया। ओके, तो इस हफ्ते का स्केड्यूल कुछ इस तरीके से है, इस हफ्ते का नहीं है, ओके। फिर भी जो मेरे पास है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो 2 तारीख को, है ना, 2 तारीख को क्या नाम है भाई का? हाँ, पीयूष जयंती है। 2 तारीख को गांधी जयंती है, मगर हम लोग पीयूष जयंती मनाएंगे। तो आप लोगों से विनती है कि गोखीवरम में मेरा घर सभी को पता है, ओके। रोहिता और अरविंद के घर पे आप लोगों को मिलना है। टाइमिंग शाम को, हाँ मेरे ख्याल से देख सकते हैं, ओके। यहाँ पे अच्छे अच्छे खाने भी बने हुए हैं, तो कोशिश करेंगे हम लोग इसी तरीके का कुछ खाना बना के लेकर आए, ठीक है, ओके। और एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि कॉन्फ्रेंस आने वाला है, तो आप लोगों से विनती है कि कॉन्फ्रेंस के लिए आप लोग रजिस्ट्रेशन करें। ब्रदर अजय से मिलना है ना, ब्रदर अजय से मिलना है। आप लोगों से विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस कॉन्फ्रेंस में आप आइए, और वहाँ पे जो संदेश है बहुत अच्छे संदेश होंगे। इस बार जो टॉपिक है द गॉस्पल, है ना, द गॉस्पल के विषय में है कि किस तरीके से परमेश्वर का सुसमाचार हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर हैं, हम भी गॉस्पल के द्वारा ही बचाए गए थे, है ना। तो उसके विषय में संदेश रहेंगे। ये है अनाउंसमेंट, और अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं ऑफरिंग के बारे में, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जिस तरीके से सुसमाचार बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में, एक विश्वासी के जीवन में सुसमाचार बहुत इम्पोर्टेंट है। जिस तरीके से प्रार्थना करना बहुत इम्पोर्टेंट है, और जिस तरीके से लोगों से प्रेम करना, लोगों के लिए प्रार्थना करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये परमेश्वर हमसे रिक्वेस्ट नहीं करता, ये परमेश्वर हमको आज्ञा देता है। ये सारी चीज़ें अरविंद तुझे करनी है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ चर्च में बैठे हुए हम सभी लोगों के लिए परमेश्वर हमको रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है, परमेश्वर हमको आज्ञा दे रहा है। ये सारी चीज़ें तुम्हें करनी है। एज अ विश्वासी तुम्हें लोगों से प्रेम करना है ना, तुम्हें लोगों की आत्माओं के लिए प्रार्थना करना है, तुम्हें जाके लोगों को सुसमाचार बताना है, ये सारी चीज़ें करना है। ये परमेश्वर की आज्ञा है। उसी तरीके से परमेश्वर ने हमें एक आज्ञा दी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बाइबल में, देना, है ना, दान देना, परमेश्वर को देना। और परमेश्वर स्वयं यीशु मसीह दान देते हुए हम लोगों ने बाइबल में देखा है कि वो उसने दिया। और सबसे बड़ा उदाहरण क्या दिया? उसने अपने जीवन को हमारे लिए दिया। एक पंक्ति पढ़ते हैं, 2 पंक्तियां हैं, नीति वचन का किताब, नीति वचन इंग्लिश में प्रोवर्ब्स, ओके, 3रा अध्याय वचन 9 और 10। पंक्ति इस तरीके से बोलती है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, इस प्रकार से तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों में से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा, है ना। तो हम लोग देखते हैं कि यदि इस पंक्ति बताती है कि अपने संपत्ति में से, परमेश्वर ने जो कुछ भी तुमको दिया है उसमें से हमें परमेश्वर हमसे 90% नहीं मांग रहा है। अच्छा है कि परमेश्वर ने यहाँ पर कई बार हम लोग 10% के लिए भी हम लोग जो अपने जेब को टटोते हैं, कितना निकाले, कितना दे, कितना निकाले, पर धन्यवाद परमेश्वर का कि परमेश्वर ने हमको 90% नहीं, परमेश्वर ने हमको 10% बोला है। और परमेश्वर बोल रहा है कि यदि तुम दोगे, है ना,
अपनी बोलते हैं कि परमेश्वर बोलता है कि पहला देना है, यानी कि कई बार हम लोग कई बार हमारे मतलब सैलरी जब हमारे पास आती है, जब हमारे पास में हमारी सैलरी आती है और हम सारे बजट बनाने लगते हैं, उसके बाद में हम लोग कई बार ऑफरिंग के मैं पहले ऐसा सोचता था, पर थैंक यू परमेश्वर ने ये रोबिता को मेरे जीवन में लेकर आया है ना। तो उसकी मैंने उसको देखा कि चाहे वो पैदल चल के बाइबल कॉलेज के लिए जाए, मगर वो मेरे को बताती थी कि सिखाती जब मैं बाइबल कॉलेज में था। मैं सोचता था कि मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, मैं बाइबल कॉलेज में था एज अ स्टूडेंट था, तो मैं सोचता था मुझे ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे लोग हैं ना, लोग दे रहे हैं, मुझे ज़रूरत नहीं है देने की, है ना। मुझे तो स्टाइपेंड मिलता है, मुझे जो मिलता है मुझे ट्रैवलिंग के लिए मिलता है, मगर उसमें भी परमेश्वर ने मैं देखता हूँ कि रोबिता मेरे को बोलती थी कि उसमें से भी तुमको परमेश्वर को देना है। तो मैंने उस टाइम से मैंने सीखा परमेश्वर को देने के लिए। और बाइबल बताता है कि यदि तुमको अपने जीवन में आशीष चाहिए तो परमेश्वर को दो, है ना। तो बोलते कि नदी का जो पानी है ना, ये जब मैं इस पंक्ति को पढ़ रहा था मुझे एक उदाहरण याद आया कि बोलते हैं कि जो इस प्रकार से तेरे खत्ते पूरे भरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों में से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। लाइक कहीं किसी गड्ढे में अगर पानी पड़ा है ना, तो थोड़े दिन बाद में उसमें से हम लोग देखते हैं कि स्मेल आने लगती है ना। पर यदि नदी का जो पानी है ना, नदी का जो पानी जो बहता हुआ रहता है वो हमेशा क्या रहता है, साफ रहता है। लोग उसको कई जगह पे उसको पीने के लिए हर एक तरीके से उस पानी को इस्तेमाल करते हैं। तो परमेश्वर यहाँ पे हमको बोलता है यदि तुमको तुम्हारे जीवन में तुम्हारे जो दान है उसमें तुमको आशीष चाहिए, उसको अपने पॉकेट में बोलते ना अपने पास पकड़ के मत रखो, है ना, अपने पास पकड़ के मत रखो, बल्कि पर जब तुम्हारे पास अगर परमेश्वर ने तुमको दिया है तो उसको क्या करो, परमेश्वर को दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वयं यीशु मसीह ने दिया और हमें परमेश्वर चाहता है कि हमें भी परमेश्वर को देना है। ओके, आइए एक गीत होगा, उस गीत के दौरान हम लोग ऑफरिंग लेंगे। प्रार्थना करते। धन्यवाद हमारे राजा, हमारे परमेश्वर प्रभु, खासकर हम इस शाम में हम आपके पास आते हैं, इस दान के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं हमारे परमेश्वर। जो कुछ भी हम आपको देते हैं वो हमने आपसे पाया है और आपसे लेकर ही हम आपको देते हैं हमारे परमेश्वर। हमारे पास हमारा खुद का कुछ भी नहीं है, परंतु जो कुछ भी है वो आपने हमें दिया है। प्रभु होने देना कि इसे आप और भी बढ़ाइए ताकि हम हृदय से, सच्चाई से, पूरे मन से हम आपको दे सकें हमारे परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं और आगे का समय हम आपके चरणों में रखते हैं। पास्टर मेलविन को आपके चरणों में रखते हैं। जो भी संदेश, जो भी थॉट होगा वो पिता हम जानते हैं वो आपकी तरफ से है और होने देना हम उसे सीख सके और उसे हम अपने जीवन में लागू कर सके। धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से। This is the story of the cross. The Father loved us oh so much.
So how is everyone? I should tell Pastor Kishore to take a trip every month and I can come. So it's good to be here. यहाँ पर अच्छा लगा आकर And I won't be able to stay long today because I have a party director. Franklin's party. So I may moment the service so I have to leave because I don't have much time. So let's pray. God, we thank you and that we can come before you and your word is so powerful. Your word, that you created the world and everything in it, you created man, woman. And you send your son, your word among us. So we just pray that help us to listen to everything you have to say. Listen, Holy Spirit. Bless us tonight. In Jesus' name, amen. So I was thinking about one aspect of our walking in the Spirit. और मैं जो एक ख्याल सोच रहा था एक भाग जिसमें हम परमेश्वर के चाल में चलते हैं The Bible says in John 14:26, बाइबल जो यूहन्ना 14:26 में कहती है says, "But the Comforter, which is the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things and bring all things to your remembrance whatsoever I have said unto you." परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। So, Comforter is the Holy Spirit. सहायक जो है वो पवित्र आत्मा है, He's our helper. वो हमारा सहायक है। He's been given in this world so we can walk in Christ in this world. वो इस दुनिया में इसलिए दिया गया है ताकि हम जो है मसीह में चल सके। And if we don't take the help of the Holy Spirit, it's going to be difficult. और अगर हम पवित्र आत्मा का सहायता नहीं लेंगे तो वो कठिन होगा हमारे लिए। And also in Ephesians 5:18 it says, "Be filled with the Spirit." इफिसियों 5:17 कहता है कि आत्मा में भरे रहो। In Galatians chapter 6, गलातियों 6 this is a very important principle. और ये बहुत बड़ा अच्छा जो है सिद्धांत है। It says in verse 7, वचन 7 कहता है said, "Be not deceived." धोखा ना खाओ। We can be deceived. और कई हम जो धोखा खा सकते हैं Because we may sometimes assume that I'm growing, क्योंकि कई बार हम ये सोचेंगे कि हम जो है बढ़ रहे हैं but may not be true. लेकिन वो सच नहीं हो सकता। There's no condemnation though, there's no उस पर condemnation. जो है कोई दंड की आज्ञा नहीं है, But this can be a real factor in our life. लेकिन कई बार ये सच हो सकता है हमारे It जीवन में। says next thing, God is not mocked. और परमेश्वर जो है लज्जित नहीं होता। नहीं, परमेश्वर को ठट्टा में नहीं होता। परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। So doesn't mean that we are mocking God. Doesn't mean. और इसका ये मतलब नहीं कि हम परमेश्वर का जो है ठट्टा उड़ा रहे Means हैं। to say we are not so much conscious of God in our life, और हम शायद परमेश्वर के बारे में जो अपने जीवन में इतना नहीं सोच रहे, and we are not are we not walking with Him हम the उसके way you want. हम उसके साथ वैसा नहीं चल रहे जैसा वो चाहता है। And it says, "For whatsoever a man soweth, that shall he also reap." क्योंकि जो भी मनुष्य बोएगा वो उसे काटेगा। What I am sowing, जो मैं बो रहा हूँ that I will reap. तो मैं उसका ही फल पाऊंगा। If I sow wheat, अगर मैं गेहूं का दाना जो है डालूंगा जमीन में, do you think I will reap an apple? क्या आपको लगता है उसमें से सेब आएगा? No, it's going to be wheat. वो जो है उसमें से गेहूं ही निकलेगा। So in the same manner, what I am sowing in my heart, उसी तरह जो मैं अपने हृदय में बो रहा हूँ that will be the result what I am sowing. और वही उसका जो है रिजल्ट होगा जो मैं बो रहा हूँ। So we have to be careful what we sow. तो हमें सावधान रहना है कि हम क्या बो रहे हैं, How do we sow? किस तरह हम बो रहे हैं। We're going to look from Matthew chapter 13 how the seed is sown. हम मत्ती 13 में लिखते हैं किस तरह एक बीज को जो है बोया गया था। And it says in verse 8, in 6 verse 8, "For he that soweth to his flesh shall of flesh reap corruption." So Galatians
16. Galatians 16. Galatia 6. क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। So if I sow to my flesh, अगर मैं अपने शरीर में जो है बोऊंगा, to my Adamic nature, मेरा जो आदम का स्वभाव है, the result will be Adamic nature. तो उसका रिजल्ट जो है वो आदम का ही जो है I'll be result walking होगा। like an Adam nature. मैं जो है आदम के स्वभाव में चलूंगा। So God wants us to walk in a new nature He's given us. परमेश्वर चाहता है कि हम नए स्वभाव में चलें। But this is also the other part. But he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap everlasting, life everlasting. और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। So there is either we sow to the flesh, हो सकता है कि हम जो है शरीर के लिए बोए, or we sow to the Spirit, that's Holy Spirit. या फिर हम जो है पवित्र आत्मा में बोए। So either way the possible. तो दोनों तरीके से जो है एक चीज हो सकता है। So who is sowing? That's the important part. तो कौन बो रहा है ये महत्वपूर्ण चीज है। It is God who is sowing. परमेश्वर जो है बो रहा है And we are the ones who are receiving the word. और हम जो है वो वचन जो है ले रहे हैं। So Matthew chapter 13, और मत्ती 13 में there is a man here. यहाँ पर एक व्यक्ति है, The seed is sown. एक बीज को जो है बोया गया है। And there are four kinds of men. यहाँ पर 4 तरीके के व्यक्ति हैं। And it says in verse 18, Matthew chapter 13, verse 18. मत्ती 13:18 में So Jesus is explaining the parable of the sower. यहाँ पर यीशु मसीह जो एक दृष्टांत सिखा रहा है बोने वाले का। He says God sows. वो कहता है कि परमेश्वर जो है बोता है। What God is sowing? परमेश्वर क्या बो रहा है? He's sowing the seed that is the word of God in our hearts. वो जो है बीज बो रहा है जो परमेश्वर का वचन है हमारे हृदय में। And as we speak, we are receiving. और जैसे हम बातें करते हैं हम जो है उस Or वचन when we को read लेते the हैं, Bible, we are receiving. या फिर जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम वो लेते हैं। And so this is the important part. He says, verse 19, when one hears the word of the kingdom and understandeth it not, then cometh the wicked one and catcheth away the which was sown in his heart. This is he which received the seed by the wayside. जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया था उसे वह दुष्ट आकर छीन लेता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। So this man, God is sowing the seed in his heart, तो इस व्यक्ति को जो है परमेश्वर उसके हृदय में बीज बो रहा है, but he lacks the importance to understand the importance of the word of God. लेकिन वो जो परमेश्वर का वचन का महत्वपूर्णता नहीं समझ रहा है। So if you go to a village और अगर आप एक गांव में जाएंगे and if you see they are doing farming, और आप देखते हैं कि लोग खेती कर रहे हैं and there is always a road like wayside road, और वहाँ पर जो एक रास्ता होता है, and Jesus is saying the seed is falling in that kind of a place where and the birds come and they take the seed away. और यीशु मसीह बोल रहे हैं वो उस रास्ते पर गिर रहा है जहाँ पर जो पक्षी आकर उसे चूम लेते हैं। Wayside it has like no importance. जैसे खेती में जो एक छोटी सी जगह होती है बाजू में, उसका कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। So the seed is not growing. Who is the wicked one? It's the devil who removes the seed. तो यहाँ पर कौन है वो जो शैतान है जो वो बीज चुरा रहा है? It's a mystery. वो जो एक रहस्य है। Just like, I'll say this, you get out of this room and you may forget at least 50-60% of the what you heard. और आप शायद इस रूम से जाओगे तो आप 50 से 60% जो है भूल जाओगे जो प्रचार किया गया था। Because Satan tries to take away the word which was sown in your heart because he doesn't want the word to take any root. क्योंकि शैतान चाहता है कि जो वचन हमने बोया गया है उसे ले ले और वो जड़ ना पकड़े। And the next verse it says 20, but he that received the seed into stony places, the same is he that hears the word, and not with joy receiveth. Verse 21, yet he has no root in himself, but dureth for a while. When tribulation or persecution arises, because the word by and by is offended. और जो पथरीली भूमि पर बोया गया वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश का उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। It's like a stony place. His heart is like a stony place. और उसका हृदय जो एक पथरीली भूमि की तरह है।
It's like very less soil in this. वहाँ पर जो है बहुत कम मिट्टी है, The seed falls, वो बीज जो है उसमें गिरता है, takes little root, वो थोड़ा सा जो है जड़ लेता है, but when sun is up लेकिन जब सूर्य आता है ऊपर and it falls on that plant, और उस पौधे पर जब वो गिरता है it burns it up. तो वो जो है जल जाता है पौधा, And it doesn't take much root. वो जो है ज़्यादा जड़ नहीं पकड़ता, Because of the temptation and something else, he is offended, you know. क्योंकि वहाँ पर जो है वो परीक्षा हो रही है जैसे उसकी। So this is the second kind of man that has no root in ये himself. दूसरे तरीका का व्यक्ति है जिसमें जो है जड़ नहीं है। In 22 it says, he that receives seed among the thorns is he that hears the word, the cares of this world and the deceitfulness of riches choke the word and he becomes unfruitful. जो झाड़ियों में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। So here's a man who received the word, यहाँ पर वो व्यक्ति है जो वचन ग्रहण करता है, but he's so much about the care of this world. लेकिन वो इस संसार की इतनी चिंता में है, And he doesn't care much. वो ज़्यादा जो है ध्यान नहीं रखता, But in his heart there is cares, means it's like a thorn tree which has come up. और उसके हृदय में ऐसा जो है एक कांटे वाला पौधा है जो ऊपर आया है, And he is hearing, और उसका सुनना, then he has cares, और उसके पास जो है बहुत सारी चिंताएं he हैं, has deceitfulness of riches, उसका जो है उसके पास जो है धन का धोखा है, he wants to be so rich, उसे इतना पैसे वाला बनना है and he is pursuing money, और वो जो है पैसे के पीछे जो है भाग रहा है, he doesn't have time for God, उसके पास समय नहीं है परमेश्वर के लिए, the word is not important, वचन उसके लिए महत्व नहीं रखता, and all this riches, like his eyes are so focused on the riches, और उसकी आंखें जो है उस धन की ओर जो है जैसे लगी हुई है, and it chokes the word. वो जो है वचन को दबा देता है, The thorns that choke the word which was trying to see wanted to grow. और वो जो कांटे जो है वो उसे दबा देता है जो फल उगना चाहता था, It's unfruitful. वो जो है उसमें फल नहीं लाता। But verse 23 is such a good one. But he said, he that receives seed into good ground is he that hears the word and understandeth it, which also beareth fruit and bringeth forth some 100, some 60, and some 30. वचन देश कहता है जो अच्छी भूमि में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। This man is hearing, ये व्यक्ति जो है वचन सुन रहा है, word is falling in his heart, उसका वचन जो है उसके हृदय में जा रहा है and he is understanding. और वो उसे समझ रहा है, He is very concentrating on what is being said. वो ध्यान दे रहा है कि क्या कहा गया था। You know, sometimes we sit in a church, कई बार हम जो है कलीसिया में बैठते हैं, our mind can be somewhere else. हमारा दिमाग जो है वो कहीं और लगा रहता है, So, but this man is hearing it, लेकिन ये व्यक्ति जो है वो वचन सुन रहा he है, understands it, वो उसे समझ रहा है he starts bearing fruit. और फिर वो फल ला रहा है He sees it. और वो देखता है The उसे, seed is growing, जो बीज है वो बढ़ रहा है, the plant is becoming bigger, पौधा जो है बड़ा हो रहा है, word is falling, वचन जो है उसके अंदर जा रहा है he's careful to receive. और वो ग्रहण कर रहा है उसे, He gets up वो उठता है morning, सुबह में, he has a prayer time, उसके पास जो है प्रार्थना का समय है, studies the word. वचन की पढ़ाई करता है, Whenever he gets time, he studies the word. जब भी उसे समय मिलता है वो वचन पढ़ता है, He memorizes the word. वो जो है वचन याद करता है, He meditates on the word. वो उस पर मनन करता है, He keeps word as so much prime importance. क्योंकि वचन उसके लिए इतना महत्वपूर्ण है, And then the word is growing. और फिर वचन जो है बढ़ता है And he's like becoming a very strong Christian. और वो जो है एक मजबूत ईसाई बन रहा है, And because he has purpose in his heart that I will walk in the Spirit. क्योंकि उसने अपने मन में बना लिया है कि वो आत्मा में चलेगा, No matter what happens, I will be walking in the Spirit. चाहे कुछ भी हो जो है मैं Things may आत्मा में come in चलूंगा। his life, but he's still so focused on Jesus. He's letting the word fall, word grow and bear fruit. और चीजें उसके जीवन में आएगी, लेकिन वो अपने वो वचन को ग्रहण कर रहा है और उसमें फल ला रहा है। Think about the armor of God in Ephesians chapter 6, और जो परमेश्वर का शस्त्र जो इफिसियों 6 में दिखाए गए हैं, verse 17. वचन 17, It says, sword of the Spirit is the word of God. और जो पवित्र आत्मा का तलवार और पवित्र आत्मा का जो तलवार है वो परमेश्वर का वचन है।
परमेश्वर का वचन है। So sword of the Spirit is the word of God. तो वही पवित्र आत्मा का जो तलवार है वो वचन है So परमेश्वर when का। the word grows in our heart, जब वचन हमारे हृदय में बढ़ता है, it's stored, वो रहता है उसमें, it's dwelling richly. वो उसमें बढ़ रहा है। The Holy Spirit पवित्र आत्मा जो है uses the word वो वचन का इस्तेमाल कर रहा है as a sword, एक तलवार की तरह, and we are growing. और हम उसमें बढ़ रहे हैं। We are facing many things in this world, हम इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ों का सामना कर रहे हैं, but we are learning the word, लेकिन हम वचन पढ़ रहे हैं, we are applying the word, हम उस वचन को अपने जीवन में ला रहे हैं, and we are finding strength in Jesus Christ. और हम यीशु मसीह में अपनी सामर्थ पा रहे हैं। And God is so pleased with it, like this man is doing. और परमेश्वर जो है खुश हो रहा है इस व्यक्ति को देखकर। So even Jesus, when he faced temptation in Matthew chapter 4, और यीशु मसीह ने जब उसकी परीक्षा हुई मत्ती 4 में, he quoted the word उसने जो ये वचन कहा, all three times, all three temptations. और तीनों समय में। And also, we should know we have world around us, और हमारे आसपास जो ये दुनिया है, lot of wickedness in this world. बहुत सारी बुराई है इस दुनिया में। And what can save us? हमें क्या बचा सकता It's है? God's word, वो परमेश्वर का वचन है, the living word inside us. वो वचन जो जीवित है हमारे अंदर। So God wants us to walk in the Spirit. परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मा में चलें। In Galatians 5:22, there's the fruit of the Spirit. और गलातियों 5:22 जो ये पवित्र आत्मा का फल बताता है, This is inside us ये हमारे अंदर है with the word. वचन के साथ। And now we are walking in the Spirit. और अभी हम जो ये आत्मा में चल रहे हैं, And what we require, God is providing us. और हमें जो ज़रूरत है परमेश्वर जो है हमें वो दे रहा है, And through the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के द्वारा, through the word. वचन के द्वारा। And now the fruit of the Spirit is love, और पवित्र आत्मा का जो ये फल है वो जो है प्रेम है, joy, and peace. आनंद है, शांति है। The three we need in our heart. ये हमें 3 चीज़ें चाहिए। We need God's love, हमें परमेश्वर का प्रेम चाहिए, and we need joy, हमें जो है आनंद चाहिए, we need peace. हमें शांति चाहिए। It is through the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा के द्वारा है। And also next three spirit is fruit is meekness, temperance, long suffering, gentleness, and goodness. और दूसरा जो चीज़ है धीरज, कृपा, भलाई। And this is with people we need long suffer. और हमें जो है धीरज चाहिए लोगों के बीच, We need to be gentle, हमें जो है भलाई करनी है, and also goodness. और भलाई रखनी, कृपा करना है। And then next three word is faith, meekness, and temperance. और अगला शब्द जो है विश्वास, नम्रता और Faith संयम। is like we have to trust God, विश्वास ऐसा है कि हमें परमेश्वर पर रखना है, connected to heaven, connected to heaven. और जो स्वर्ग से जो है जुड़ा हुआ है। And then meekness is God consciousness all the time. और नम्रता है कि हम जानते हैं कि परमेश्वर है हर बार। And temperance is self-control. और संयम जो है खुद पर जो है संयम रखना। We are like so controlled in the way we talk, the way we receive. We are very self-controlled. और हम कई बार जो है अपना आपा खोते हैं जब हम बात करते हैं। So from my mouth, no unedifying words, they don't come out. और मेरे मुख से जो है जो किसी को प्रोत्साहित नहीं करता ऐसा शब्द ना है। It's so much of self-control. और उसमें जो है संयम रखना है। So Peter encourages 2 Peter 5:17, 5:18, but it says grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus. दूसरा पत्रस 5:18 कहता है कि परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ो। Grow in grace आप अनुग्रह में बढ़ो and also knowledge of Lord Jesus Christ. और उसके ज्ञान में बढ़ो, यीशु His मसीह के, word. उसके वचन में। So this thing. If I'm growing in grace, which I am walking in grace, और अगर मैं अनुग्रह में बढ़ रहा हूँ और उसमें चल रहा हूँ, but I'm not growing in truth in the word, लेकिन मैं अगर सच्चाई और वचन में नहीं बढ़ रहा हूँ, that can amount to lasciviousness sometimes. Means it's going to be I can misuse the word, saying I can walk in grace and I can do everything as I like. और फिर मैं उसे जो है गलत समझ सकता हूँ कि मैं अनुग्रह में हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। But also the other part, लेकिन जो दूसरा भाग है, I'm not growing in grace, मैं अनुग्रह में नहीं बढ़ रहा हूँ, but I'm growing in word, which is good. लेकिन मैं वचन में बढ़ रहा हूँ जो अच्छा है। But I can also
use word as a legalistic word, all legalist. और कई बार हम वचन को जो एक रूढ़िवादी तरीके से ले सकते हैं। I know this word और मुझे ये वचन पता and I है, can pound on people because I know. मैं जो लोगों पर उस पर वो थोप सकता हूँ जो मुझे Or पता I है, can use it against me. या फिर वो मेरे विरुद्ध भी मैं ले So सकता हूँ। both is needed, grace and the word. तो दोनों जरूरी है, अनुग्रह और वचन। And Jesus was full of grace and he was full of word. यीशु मसीह जो है पूरा अनुग्रह से भरा था और वचन से भरा था। God wants to conform to the image of Jesus Christ. परमेश्वर चाहता है कि हम यीशु मसीह की तरह बने, It will be done through the word और वो केवल वचन से होगा and the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा से। So God is putting the word in our hearts. परमेश्वर जो ये वचन हमारे हृदय में डालता है, His desire is to bear fruit in us. उसकी इच्छा है कि वो फल लाए। But what is the way we receive that so vital? We looked at it. लेकिन किस तरह हम उसे ग्रहण करते हो महत्वपूर्ण है, जैसा हमने देखा। Also, never give up growing. और कभी भी बढ़ना मत छोड़ो। Maybe sometimes we fail, कई बार हम जो है चूक जाते, गिर जाते, but we can still rise up लेकिन हम जो है फिर उठ सकते हैं and we can go to God. और हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं And God will help us grow. और परमेश्वर हमारी मदद करेगा बढ़ने के लिए। And God, fruits are bearing season. और फल जो है वो एक समय समय पे आता है। God is patient with us. परमेश्वर हमारी तरफ जो है धीरज रखता है, So He takes time sometimes. तो कई बार वो समय लेता है, But we don't stop sowing. लेकिन हम जो है बोना छोड़ते नहीं हैं। Bible says we have to. I was teaching this class, and we will end with this verses Hebrews chapter 10. परसों जो क्लास सिखा रहे थे I'm teaching Hebrews class in chapter 10 verse 21. इब्रानियों 10:21 में ऐसा लिखा है, And it says, and having a high priest over the house of God, और इसलिए कि हमारा ऐसा महायाजक है, Jesus, यीशु मसीह our high priest, हमारा महायाजक है, is living in heaven, वो स्वर्ग में रहता है, and in heaven he is our high priest. और उस स्वर्ग में जो है वो हमारा महायाजक है। And house of God is his church. और परमेश्वर का जो घर है वो कलीसिया है। It says, let us draw near with a true heart in full assurance of faith. Verse 22. तो आओ हम सच्चे मानव पूरे विश्वास के साथ और विवेक के दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव Our लगाएं, hearts sprinkled from an evil conscience, our bodies washed with pure water. और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर Our hearts are sprinkled by his blood, हमारे हृदय पर जो उसका खून जो है छिड़का गया है, and bodies are washed with pure water. Means the word of God is also cleansing us in John chapter और 15. शरीर को जो है शुद्ध जल मतलब उसके वचन से जो है धोया गया है। 23. Let us hold fast the profession of our faith without wavering, for he is faithful that promise. आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को ढूंढता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। God is faithful. परमेश्वर विश्वास योग्य है, Trust God for everything. उस पर विश्वास करो हर चीजों के लिए। Don't lose your heart towards God. अपना हृदय मत खो दीजिए परमेश्वर के In लिए। verse 24, and let us consider one another to provoke him love and to do good works. और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे को की चिंता किया करें। Let us say something good about others. हम जो एक दूसरों के लिए कुछ अच्छा कहें। Verse 25, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is. और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है। Even if you feel on coming to the church, you feel like something in your heart or something, just go to the church. और अगर आपको चर्च में कुछ सोच रहे या कुछ मन में आ रहा है, तो फिर भी आप चर्च जाइए। You will see that when you come to the church, everything vanishes away. और आप देखोगे कि जब आप कलीसिया में आओगे तो सब कुछ जो है वो मिट जाएगा। The presence of God is there, परमेश्वर का उपस्थिति यहाँ पर है and God works in your heart. और परमेश्वर आपके हृदय में है, He edifies you. वो आपको जो है प्रोत्साहित करता है। Don't withdraw. आप दूर मत होइए। Says, but exhorting one another so much more as we see the day approaching. पर एक दूसरे को समझाते रहे, और जो जो उस दिन को निकट आते देखो तो और भी अधिक नहीं किया करो। In last and in ending verse 35, cast not away therefore your confidence. Verse 35.
इसलिए अपना हियाव न छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। Be confident, और आप हियाव मत छोड़ो, which has great recompense of reward. क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। And 36 for you have need of patience. क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, And after you have done the will of God, you might receive the promise. ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। 37 for yet a little while, he that shall come will come and will not tarry. Jesus will come back. क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है जब कि आने वाला आएगा और देर न करेगा। Verse 38, now just shall live by faith. पर धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। We will live by faith. हम विश्वास से जिएंगे। If any man draw back, my soul shall not have any pleasure. और यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। God is not pleased. परमेश्वर जो प्रसन्न नहीं हो रहा है। But we are not of them who draw back to perdition, but of them that believe to the saving of soul. पर हम हटने वालों नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए। We're not going to draw back. हम जो है पीछे नहीं होंगे, We're going to go in front. हम जो है आगे बढ़ेंगे, We'll bear fruit. हम फल लाएंगे। Seed is falling. वो बीज जो है गिर रहा है वहाँ पे, God is working. परमेश्वर काम कर रहा है। Don't be like those 3 men. उस 3 व्यक्तियों की तरह मत बनो। Now one was receiving on the wayside, एक जो है साइड के रास्ते पर जो है वो ले रहा था, and one was like, had very few soil, temptation, and he walked away. और एक जो है जहाँ पर कम मिट्टी थी और वो वहाँ से चला गया जब परीक्षा आई। The third man was like, too many details in his life. तीसरा व्यक्ति जो दुनिया की बहुत चिंता कर रहा था, But the fourth man was received. लेकिन चौथा व्यक्ति जो है वो ग्रहण कर रहा था बच्चों। But I'm saying this, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, there will come a day ऐसा समय या दिन आएगा, your faith will be strong, आपका विश्वास जो है बहुत मजबूत होगा, and you will receive a blessing. आप जो है आशीष पाओगे You will be a blessing. और आप ही एक आशीष बनोगे And God will use you mightily. और परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। But the seed is very important, लेकिन वो जो बीज है वो बहुत महत्वपूर्ण है and the word of God is important, और वो परमेश्वर का वचन महत्वपूर्ण है and every word of God is pure. और परमेश्वर का वचन बहुत पवित्र है। Hebrews 4:12 is powerful. इब्रानियों 4 कहता है कि वो सामर्थ भरा है, Receive it, उसको आप ग्रहण करो, इस पर पढ़ाई करो, let it grow, वो बढ़े and so on. And we will learn how to walk through this. और हम फिर सीखेंगे किस तरह पवित्र आत्मा में चलना। That's what God wants for us, is to walk in the Spirit. और परमेश्वर यही चाहता है, Be filled with the Spirit. आप आत्मा में भरो And our walk will be very fruitful. और हमारा जो चलना है वो फल लाएगा। Amen. Let's all stand for the final song. Who choose you to stay, whom you will serve, the kingdom of heaven, of powers of God. Has he not spoken? Have you
house is the Lord, and all within. May we be pleasing and holy to Him. Joined by His Spirit, His people sing. Great is the one true God. Oh, great is the living God. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord our God. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord our God. अच्छा संदेश था। मैंने कुछ जो नोटिस किया उसके बारे में कि एक प्रकाश में चलना, सिर्फ जिस तरीके से पैस्टर ने स्टार्ट किया कि प्रकाश में चलना है, और प्रकाश में चलने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक दिन, है ना। हमारे पैस्टर ने बोला कि मॉर्निंग डिवोशन कर लिया या थोड़े टाइम के लिए उन्हें प्रेयर कर लिया, बस हो गया, है ना। उदाहरण के तौर पर लाइक हम बॉयज़ लोग या मेंस लोग गाड़ी में पेट्रोल कभी भराते, कोई बोलेगा, कोई आंसर देगा? खत्म होने से पहले, है ना। बहन ने बोला खत्म होने से पहले, खत्म होने के बाद में नहीं, है ना। खत्म होने के बाद यानी कि धक्का पलट करके नहीं, बने रहने का मतलब है कि हर दिन अगर मैं नहीं बनाऊं तो अगली पंक्ति बताते हैं जो पास्टर ने जो नोट किया, अगर हम ऐसा नहीं करें तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, है ना। अगर हम ऐसा नहीं कर रहे, अगर हम परमेश्वर में बने हम नहीं है, अगर हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ में नहीं है, अगर मैं प्रकाश में नहीं चल रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है? मैं धोखा दे रहा हूँ, अपने आप को धोखा दे रहा हूँ, किसी और को नहीं, मैं अपने आप को धोखा दे रहा हूँ। तो आज हम जो लेके जा रहे हैं, क्या लेके जा रहे हैं? हमें सिर्फ ऐसा नहीं कि आधा घंटा 45 मिनट हमने डिवोशन कर लिया या प्रेयर टाइम कर लिया, बस वो नहीं। हमें हर दिन हर समय परमेश्वर में बने रहना है, हर समय हमें प्रकाश में चलना है। हमें आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद हमारे राजा, हमारे परमेश्वर, वो महान है। धन्यवाद इस संदेश के लिए, धन्यवाद पैस्टर के लिए, धन्यवाद कि उनके जीवन के लिए हमने उनको देखा है व्यक्तिगत तौर पर। पिता परमेश्वर वो आप में कितने फेथफुल हैं। धन्यवाद इसी तरीके से आप उन्हें अपने गुप्त ज्ञान का भंडार आप उन पर उड़ेलते रहो हमारे परमेश्वर, ताकि हम उससे तृप्त हो सके और आपको हम आदर महिमा गौरव प्रशंसा दे सकते हैं। पिता परमेश्वर, पिता हम धन्यवाद देते जो कुछ भी हमने सुना है हम इस पर अमल कर सके और अपने जीवन को फल लेकर आ सके। हमारे परमेश्वर, धन्यवाद पैस्टर के जीवन के लिए, उनकी ट्रैवलिंग के लिए और उनके पूरे ईयर के प्लान के लिए। पिता परमेश्वर हम मांगते हैं हर एक तरीके से आप उन्हें ब्लेस करना, चाहे वो आर्थिक हो, व्यक्तिगत हो, पर्सनल हो, हर एक परिस्थिति में आप उनके संग रहना, आप उन्हें अगुवाई करना। धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना वित्ती प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।